Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So guys, on this platform of Darshanik IAS, today I am going to discuss with you one more model case study of ethics paper. So guys, half of your ethics paper is all about case studies, and to score 140, 150 plus in the case studies, you need very good command over the case study topics. I have already recorded few lectures in which I have discussed some strategy regarding case studies, and even some model case studies are there. Also check out my other ethics lecture on my channel of YouTube with the name Darshanik IAS. So guys, today I am going to discuss with you one corporate governance case study. Now to address or deal with this case study guys, okay, there is a proper format or structure in which you need to answer the case study, and you need to apply a lot of thinkers and generate solutions to the case study. So I have discussed how you should be formatting, structuring case studies. For that I have taken one lecture, case study discussion lecture, that you can check out on my channel. And today whatever I have explained in that, I will explain you with the example of this model case study. So guys, in case study answer writing, 2 points I exclusively told you what UPSC is expecting from case study answer. Why the topic of case study or case study analysis has been added. And the major reason for that is guys, applying theories. They want to check your first skill, how good you are at applying theories. You are not just reading topics theoretically, but you know how to practically implement them. So whatever thinkers you have studied in case study, in UPSC ethics paper, how well you can apply them, that they are expecting more. And secondly, generating solutions. Okay, how you can generate more and more solutions to the case study given. So more solutions and better application of thinkers. This is what two things they expect more. And in this case study, exactly how to satisfy this demand, that I will explain to you. So today we'll discuss one corporate governance case study. So along with that guys, I gave you some basic tips in that previous lecture related to case study answer structuring. So there I told you to do proper SWOT analysis, understand facts, assumptions clearly. Then I told you to draw a diagram of key actor and perspective. Today I will show you what I mean by a diagram of key actor and perspectives. Then highlight the moral dilemma in the case study. Then you have to address the moral dilemma present in the case study in one line. So entire case study you have to write in 2 or 3 lines, in 1 or 2 lines. Okay, turn that entire case study as a precise writing into a crux in one single statement. Then value loaded terminology. We will be discussing lot of value loaded terminologies, and that in answer you have to use more and more such a value loaded terminologies that you have studied in your ethics paper. And also you need to go beyond case study and give some solutions, and this solution has to be administratively feasible, not extremely hypercritical solutions. Okay, so these 7-8 points that you need to keep in mind while answering case study. And today's case study I am exactly going to reflect these points, how you can introduce these points in case study. So now this is the case study. You can read the case study. So we'll read this together. So case study is about corporate governance. UPSC has asked this case study previously in its paper. So one of the scientists working in R&D laboratory of a major pharmaceutical company discovers that one of the company's best-selling veterinary drugs has the potential to cure currently incurable liver disease, which is prevalent in tribal areas. However, developing a variant of the drug suitable for human being entailed lot of research and development, having huge expenditure to the extent of rupees 50 crores. It was unlikely that company would recover the cost, as the disease was rampant only in poverty-stricken areas, having very little market otherwise. If you are the CEO, then identify various actions that you could take and evaluate pros and cons of each of your actions. Okay, so this is basic case study related to corporate governance. There is a separate point. I told you corporate governance in your syllabus, and they ask a lot of question on corporate governance in section A, but they are asking the entire case study about corporate governance. So do that part well. Okay, or if I am going to start my ethics courses online on my Darshanik IAS app. So you can download that app from Google Play Store, and there on Darshanik IAS app,
I will be discussing corporate governance topic in detail. 3-4 hours we'll discuss that topic. And in corporate governance topic, I will discuss concepts about what is professional ethics, what is personal ethics, what is administrative ethics, what is difference between administrative governance and corporate governance, or administrative ethics and corporate or business ethics. Then I will discuss what is corporate ethics, how to ensure ethical governance in private sector. And for that I will discuss with you two major policy, Tata's Code of Conduct policy, Tata's Code of Ethics policy. They are the best example of corporate governance in India. And along with that, there are many other topics in corporate governance like third party ethics, integrity pact, conflict of interest, etc., corporate social responsibility, corporate citizenship, triple bottom line approach. So many such fundamental topics or very basic topics related to corporate governance I will discuss 3-4 hours in class. So whatever question UPSC may ask on corporate governance, whether in section A or section B, that is case studies, you will be able to answer those case studies very well, very effectively. So you don't have to worry anything at all about my ethics paper. And lot of this data you can use even in essay papers. So this will be cumulative advantage. So do enroll for that course that is available online on Darshanik IAS app. So now in this case study, guys, of corporate governance, few points that you have to note down or important are that you are MD and CEO or CEO of the company, and your company produces veterinary drugs. Now one ingredient found in that drug has the ability to cure diseases prevalent in tribal areas, but it is going to cost you huge expenditure to the extent of 50 crores. To the extent of 50 crore. This is a fact. To the extent of 50 crore. थोड़ा बहुत कम होगा तो 45, 47, 48 crores, बट उससे ज़्यादा नहीं. तो यू कांट चेंज द पैरामीटर ऑफ केस स्टडी कि 50 करोड़ का मैं 10 करोड़ में ड्रग प्रोड्यूस कर दूंगा. अगर इतना ईजी होता तो यूपीएससी केस स्टडी पूछेगी ही नहीं. तो ये फैक्ट है, सो डोंट टैम्पर विद द फैक्ट. उसी में रह के by keeping in mind 50 crore expenditure, you have to answer the case study. Now, what next they are saying? It was unlikely that company would recover such a cost. It might lead to severe financial trouble for the company. So, what actions you will take? Pros and cons of each actions. So, इसमें ज़्यादा कुछ short analysis करने को है नहीं है. एक ही important point है, 50 crore investment could create financial crisis for the company. So, directly, I already told you that before you start the case study, answer, first point with which you have to start the answer is key actor and perspective diagram. So directly just make a circle, key actor and perspective or stakeholders involved, whatever word you can use for that, and try to come up with the different stakeholders. Now, in this case study, who are the stakeholders? Mostly 5-6 stakeholder, everyone will write. One stakeholder is, you are MD CEO of the company, you are as a stakeholder. Scientist or R&D department of your company who found this ingredient that can cure disease. Then your company as a whole, company's employees. Then if there are any shareholders, stakeholders, partners, वो भी एक stakeholder है. Then government as a whole, वो भी एक stakeholder है. तो ये तो 6-7 stakeholders आपको बहुत quickly याद आएंगे, या बहुत सारे बाकी आपके competitor जो ये case study solve करने वाले उनको याद आएंगे. बट यहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वन पॉइंट आई एक्सक्लूसिवली टोल्ड यू कि हियर यू नीड टू फोकस एंड थिंक इन डेप्थ एंड कम अप विथ एक्स्ट्रा 4-5 स्टेक होल्डर्स. इफ यू कम अप विथ एक्स्ट्रा 4-5 स्टेक होल्डर्स, you will be able to get very good marks. Because these extra stakeholders that you can think of now, you can use them in your answers later on. And so let's go over the stakeholders. First is आपका company. Then a CEO, R&D scientist, employees and families, shareholder and stakeholders, if any, involved in the case study. Then tribals, for whom you are developing the drug or you're supposed to develop the drug. And then government as a whole. अब इसके अलावा, who are the different stakeholders in the case study? तो guys, इस case study में एक aspect, यहाँ पे 2 solution सबको दिमाग में आएंगे. That I will not develop the drug because it will tremendously cost my company financial crisis, और मेरी कंपनी डूब गई तो सारे एम्प्लॉइज सबका नुकसान, और वैसे तो ड्रग फिर बाद में कौन बनाएगा इफ कंपनी वेंट इनटू बैंक्रप्सी. तो आई विल नॉट डेवलप द ड्रग, और आई विल डेवलप द ड्रग टेकिंग रिस्क. बट ये जो पॉइंट है दैट देयर इज अ लिटिल मार्केट पोटेंशियल फॉर द ड्रग,
in that tribal area. So now think little bit out of box. I told you these case studies, they want how much you think out of box. They want to check this ability of yours. And I told you it's a competitive exam. Write more than others, write different than others. थोड़ा हटके सोचो. Then in my points I told you, go beyond case study and think little bit. तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंसर में ऐसा भी कुछ एस्पेक्ट बन सकता है that maybe that disease is prevalent in that particular area for which there is no big market potential. But मुझे क्या पता वो disease could be prevalent in some African state, वहाँ पे करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट है उस डिजीज से, या ये डिजीज जो है किसी और यूरोपियन अमेरिका के भी कंट्रीज में कुछ लोगों में प्रिवेलेंट हो सकता है कुछ एरियाज में. यू डोंट नो अबाउट दैट. सो डूइंग मार्केट सर्वे, मार्केट एनालिसिस, proper study of this disease and its prevalence, that will help you to take a more rational investment decision. और अगर आपके पास वो सारा डेटा आ जाता है एंड यू रियलाइज कि अफ्रीका का पूरा एक कंट्री इन्फेक्टेड है या अमेरिका यूरोप में भी बहुत सारे लोगों में ये डिजीज प्रिवेलेंट है, देन आप जो 50 करोड़ की कॉस्ट डाल रहे हो, मे बी योर कंपनी विल मेक 500 करोड़ प्रॉफिट आउट ऑफ इट. तो इंडिया में तो उस ट्राइबल एरिया में वो कंडीशन है, but you don't know, so go beyond case study. एक solution that I will do the market survey and will try to understand proper prevalence, proper impact of this disease, so that will help me in decision making. अगर नहीं prevalent, then you have choice not to make drug, but if it is prevalent, then it will be very profitable venture for you, and then you don't have to worry about financial crisis. Rather you can change your business operations and make lot of profit. तो इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेक होल्डर आपको आगे बहुत सारा आंसर लिखने में काम करेगा. सो थिंक लिटिल बिट आउट ऑफ बॉक्स, थिंक लिटिल बिट बियॉन्ड केस स्टडी, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू शो टू द एग्जामिनर दैट आई कैन थिंक दिस वे, मेक मी आईएएस, आई विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, आई विल कम विद द सोल्यूशन. ना कि ये नुकसान का काम है, मत करो. आई एम नॉट दैट बैन ओरिएंटेड आईएएस, आई एम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड आईएएस. सो सर्वे एजेंसीज, I will tie up with some survey agencies, appoint some survey agencies to do the study and give me a report about prevalence of disease and real market potential. Then उसी से लिंक फिर फैक्टर है इंटरेस्ट एजेंसीज, उनके पास बहुत सारा डेटा होगा. दे कैन इवन फाइनेंस योर वेंचर, सब्सिडाइज योर वेंचर, ओके, या दे विल टेल यू द एग्जैक्ट आउटकम, या दे विल हेल्प यू इन फाइंडिंग मोर बेटर सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस इशू. या कोई इंटरनेशनल फंडिंग मिल सकता है आपकी रिसर्च को, लाइक मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक्सेट्रा. तो जो इंटरनेशनल एनजीओज वगैरह काम करें उनकी भी हेल्प आप ले सकते हो. सो दैट पॉइंट ऑल्सो यू कैन राइट. देन आपका जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, ओके, ये भी एक स्टेक होल्डर है इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पब्लिक हेल्थ में इंडिया के. इंडिया हैज वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ दिस जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री की कंपनीज का, रैम्बैक्सी, पिरामल, देर आर मेनी जेनरिक ड्रग इंडस्ट्रीज कंपनीज इन इंडिया. So they can also help you out. So you can consider them also as one stakeholder. Then उसके अलावा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वो भी एक स्टेक होल्डर बन सकता है. गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होती है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनीज होती है. यू कैन एक्सप्लोर द ऑप्शन दैट उनको फॉर्मूला दो, वो ड्रग प्रोड्यूस करे, ओके, एंड यू डोंट हैव टू वरी. यू कैन कीप ऑन डूइंग योर बेसिक बिजनेस ऑफ वेटरनरी ड्रग्स एंड यू हैंड ओवर द फॉर्मूला ऑन शेयरिंग बेसिस और नॉन फॉर प्रॉफिट बेसिस एक्सेट्रा. सो किसी और कंपनी के साथ भी फॉर्मूला शेयरिंग पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो, नॉन फॉर प्रॉफिट और शेयरिंग बेसिस पे. तो ये भी एक स्टेक होल्डर बन सकता है. और इसके अलावा अगर आप ये काम करते हो, ओके, देन ओवरऑल आपकी जो इमेज इंप्रूव होगी, नॉट ओनली इन ट्राइबल एरिया बट इन कम्युनिटी, इन अ सोसाइटी, ओके, वो भी एक अलग स्टेक होल्डर आएगा. एंड सो पब्लिक एट लार्ज, ये भी एक स्टेक होल्डर बन सकता है. एंड यू शुड बी मेंशनिंग इवन दैट स्टेक होल्डर. पब्लिक एट लार्ज कैन ऑल्सो बी अ गेम चेंजर. नाउ अंडरस्टैंड, अब ये जो सारे फैक्टर्स है गाइज, आई टोल्ड यू दैट इथिक्स के बुक में या मेरे क्लासेस में मैंने जो कंटेंट पढ़ा है उसी में से ही सारे आंसर मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं. इवन आई कैन गिव यू द गारंटी, यस, बट इन माई क्लासेस वट एवर आई कवर, आई विल गारंटी यू दैट 85-90% पेपर विल बी फ्रॉम आवर क्लास डिस्कशंस. ओके, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आई विल डिस्कस एंटायर इथिक्स कोर्स, एसे कोर्सेस ऑन माई दार्शनिक IAS ऐप. और एसे में भी गाइज जो एसे दैट आई एम टेकिंग in my classes, even in many offline institute where I teach in Delhi, okay, the essay program that I conduct, out of 8 essays guys, 4 in 2021 के एग्जाम में were from the class discussions, okay, and even 22 के एग्जाम में out of 8, okay, 3 essays were from the class notes. So काफ़ी अच्छा हिट रेट है कंटेंट का. So that I will guarantee you
Okay, you just study all those lectures, all those contents very well. But coming back to the point कि हर चीज का आंसर आपको वही केस स्टडी में मिलेगा, उस ऐसी कोई गारंटी नहीं है, सॉरी आपकी किताब में मिलेगा. बिकॉज आई टोल्ड यू एज फॉर यूपीएससी का जो नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट और दोज हु आर एक्सट्रीमली डायनेमिक. ओके, और ऐसे स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग सोसाइटी वेरी वेल, और आपको बहुत सारे आंसर्स क्वेश्चन के वहां पे भी ढूंढने. यू हैव टू लिव यूपीएससी एज अ लाइफ स्टाइल, अ वे ऑफ लाइफ, एंड बी अवेयर ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. सो नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, ये आंसर कैसे ऑन स्पॉट आपको क्लिक होनी चाहिए, वो एक मेंटेलिटी डेवलप करनी है, सोच डेवलप करनी है. तो facebook.org का जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा था, तो वहां पे काफी इंडिया में रेजिस्टेंस था, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी. सो आई वॉज जस्ट वॉचिंग फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का एक वीडियो, शेयर होल्डर मीटिंग चल रही थी यूएसए में, एंड वन ऑफ द शेयर होल्डर आस्क्ड जुकरबर्ग डाउट दैट ऑलरेडी इन इंडिया वी पे द टैक्सेस, then already in India we do 2% of CSR mandated under Companies Act, under corporate social responsibility, तो वो भी हम कर रहे हैं. तो ये इतना सारा हम ऑलरेडी कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं CSR में, देन फिर और 10,000 करोड़ की facebook.org पे इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है ना. उसके आंसर में जुकरबर्ग एक्सप्लेन दैट आज जो हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट विल क्रिएट एक्सट्रीम गुड विल, गुड इफेक्ट फॉर अस इन इंडियन मार्केट. It will improve the company's image. It will create a brand name of Facebook in every household. So just like for example what he mean, हम जो कहते हैं कि सर्च करो, we don't say that, we largely say Google कर. So Google has become equivalent to a search engine. Same way we don't say print करो, we say Xerox. Xerox has become equivalent to the printing. So same way हेल्थ में कुछ चेक करना है, न्यूज चाहिए, कोई कुछ इंसिडेंट हुआ, फेसबुक देख. हेल्थ चाहिए, फेसबुक चेक कर. इट विल बिकम द फेसबुक एज अ हाउस होल्ड नेम, और इससे जो ब्रांड इमेज ये हो क्रिएट होगा, पब्लिक में गुडविल क्रिएट होगा, एंड फेसबुक विल बिकम हाउस होल्ड नेम. इट विल बी अ लाइक इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट और इनडायरेक्ट पब्लिसिटी. तो वहां से बहुत सारा फायदा हमें हो सकता है आगे जाके. इट इज नॉट जस्ट अ फिलैंथ्रोपिक वेंचर. तो वो जो उसका एक्सप्लेनेशन था, वहीं से ये पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दिमाग में आया, एक स्टेक होल्डर, पब्लिक एट लार्ज, और इसी को मैं आगे फिर आंसर बना के रिप्रेजेंट करूंगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दैट विल गिव मी एक्स्ट्रा मार्क्स. तो यही आपको करना है. कोई डे टू डे लाइफ में भी आप चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, यू कैन थिंक एंड लिंक देम इन योर आंसर्स. सो दिस इज स्टेक होल्डर की डायग्राम, फट से बना दो. ओके, ये जो एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 स्टेक होल्डर मैंने लिखे, that is as good as extra 6 marks. तो that's why I told you कि एक्टर पर्सपेक्टिव ये आपको स्टेक होल्डर्स काफी स्मार्टली यू हैव टू राइट. नाउ दिस एंटायर केस स्टडी आपको एक लाइन में लिखनी है. स्टेक होल्डर डायग्राम हो गई, देन इथिकल और मोरल डायलेमा इन्वॉल्व इन द केस स्टडी. ये केस स्टडी का प्रॉब्लम क्या है, पुट द एंटायर केस स्टडी का मोरल डायलेमा, इथिकल डायलेमा इन वन लाइन. सो व्हाट इज द एंटायर summation of the case study? What this entire case study is talking about, 50 crore investment, whether it's a profitable or non-profitable decision for the company, and lives of people on other hand, tribal people, okay, to develop the drug, take a risk, financial risk, and save lives, or let the people die and think in a financially prudent manner. So what is most appropriate thing to do? So in short, the entire case study is about humanitarian values, okay, of saving poor tribal people versus professional bottom line for my company and for the stakeholders. So in short, what this case study also means is the utility calculation, cost benefit calculation, okay, productivity calculation, which option will entail what cost, what benefits, whether I should develop the drug, what are the cost, what are the benefits. So utility calculation, cost benefit analysis, Jeremy Bentham's utilitarian calculus on one hand, cost benefit analysis, versus John Locke, rights ethics, the life of a people involved, okay, that is conflict between the rights ethics. तो सी केस स्टडी तो आपको भी समझ में आई, प्रॉफिट वर्सेस लाइफ, बट आई टोल्ड यू हैव टू रिप्रेजेंट हिम इन द लैंग्वेज ऑफ थिंकर्स, अप्लाई थिंकर्स and explain in a language of thinkers whatever you are going to write. So you just have to create a vibe that examiner should feel he is well studied student. He is not some naive psychologist, naive philosopher
he has well read subjects, he has studied subject well, okay, has a good command, he understand the things from a thinker's perspective. तो ये दो एक लाइन में you have summed up the case study. Now let's go to the answer then. So आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? सी अब इसमें क्या ऑप्शन है, या तो आई विल डेवलप ड्रग और आई विल नॉट डेवलप द ड्रग, इसके और तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं. और जो भी प्रीलियम के एग्जाम क्रैक कर चुका है ही विल हैव दिस टू ऑप्शंस. सो वेयर द मार्क्स इज, बिकॉज दिस इज कम्पिटिटिव एग्जाम, सबको 10 आने वाले, आपको भी 10 आ गए. देयर इज नो गेम चेंजर हियर. इफ यू वांट टू चेंज द गेम देन बाकियों को 10 आ रहे हैं, मुझे 15 चाहिए केस स्टडी में, तो हर कोई यही दो ऑप्शन पे आंसर लिखने वाला है. हाउ मच मोर यू राइट एंड हाउ मच मोर फ्रॉम द थिंकर्स परस्पेक्टिव यू राइट, यू विल गेट मोर मार्क्स. सो योर फोकस should be like that, or the way you write the language, वो framing of language should be also like some IAS is writing the report. Okay, वो language command भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी उस टाइप की, और वो हो जाता है. आप रिपीटेटिवली आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, ओवर अ टाइम you will develop that. So as per utilitarian theory, maximum happiness of maximum people should be the end goal. तो पहला ऑप्शन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं. तो पहला ऑप्शन क्या है, दैट आई विल नॉट डेवलप द ड्रग. तो ये ड्रग वाई आई विल नॉट डेवलप, प्रोस एंड कॉन्स, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ नॉट डेवलपिंग द ड्रग एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाई आई शुड डेवलप द ड्रग. तो दोनों साइड से लिखना है. तो आई विल नॉट डेवलप द ड्रग, व्हाई, बिकॉज एज पर यूटिलिटरियन थियरी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल शुड बी द एंड गोल. तो मैंने पहली टर्म कॉइन की, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल. ओके, एंड एनी सच एक्शन इज इथिकल बेस्ड ऑन आउटकम्स. दैट्स व्हाट जेरेमी बेंथम वाज सेइंग, that any action is ethical based on outcomes, and outcome should be maximum pleasure for maximum people. Investing 50 crore rupee considering narrow market potential will go against the interest of company. So developing this drug will go against interest of my company. 50 crore investment is too high and there is very narrow market potential for the drug. बहुत कम एरिया में वो प्रिवेलेंट है, and that will be risky decision. So I will not take this decision. It could even lead to worst financial crisis for the company, from which company might not recover, and it will create pain for me as a company owner, my employees, उनकी families, shareholder, stakeholder, partners, सबका नुकसान. और कंपनी वैसे भी बंद पड़ गई तो फिर ड्रग आगे कोई बनाने ही नहीं वाला, तो वैसे भी ट्राइबल्स का नुकसान लॉन्ग टर्म में तो होगा ही होगा. सो आई विल नॉट डेवलप द ड्रग, आई विल नॉट डेंजर द जॉब्स ऑफ मेनी मोर डिपेंडेंट ऑन माई कंपनी फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड सो आई विल नॉट डेवलप द ड्रग. So, as per utilitarianism theory of Bentham, it will be ethical not to spend the money on such a huge expenditure as cost-benefit analysis does not support investment decision. तो आप एक MBA स्टूडेंट जैसे आंसर लिखो, MBA एक बिजनेसमैन जैसे आंसर लिखो. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शोज दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर. ओके, आई शुडंट रिस्क इट, एंड सेविंग लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल, दैट्स नॉट योर ड्यूटी. You are a private company owner, you are not bound by those duties legally. Yes, you are morally bound to save the people's lives. वो क्यों moral compulsion है वो आगे explain करूंगा मैं, लेकिन legally तो आपका कोई obligation नहीं है. So I will think of my business interest, my profit. Okay, and but this decision is unethical as it is based on quantification of life or quantification of values. अब guys देखना, ये जो point है, जो मेरे क्लासरूम के इथिक्स के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हो या बाकी जो सुन रहे हैं, उनको ये पॉइंट बहुत क्विकली समझ में आएगा, बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन एक्सट्रीम डिटेल इन माय क्लासरूम. लेकिन अभी जो सिर्फ मेरी केस स्टडी सुन रहे हैं, मेरे इथिक्स के क्लासेस नहीं किए, उनके लिए आई जस्ट विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. ये जो वर्ड है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ अ यूटिलिटी थ्योरी, बेंथम, जेरेमी बेंथम की थ्योरी का. व्हाट जेरेमी बेंथम थ्योरी सेज दैट यू टेक अ डिसीजन ऑन बेस्ड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. बट गाइज व्हेन यू आर डूइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर आप बोट पे हो, 4 लोग हैं, भूखे हैं, तो फिर इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर आपने एक को मार के खा लिया और तीनों की जान बची, तो चारों मरने वाले थे, इससे अच्छा एक को मार के खा के 3 लोगों की जान बची. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में तो 3 लोग मरे, 3 लोग बचे, एक ही मरा, रादर देन चारों मर जाते. तो फिर क्या ये जस्टिफाई होगा किसी आदमी को मारना? एंड दैट्स वन ऑफ द डिसएडवांटेज और डेंजर ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी. यूटिलिटी थ्योरी यू कैन यूज in case of money, objects, but you can't apply utility theories when human life is involved.
लेकिन अगर आप ह्यूमन लाइफ को पैसों में तोल रहे हो तो उसी को बोला जाता है क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज या क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइफ। आप लाइफ को क्वांटिफाई कर रहे हो, एंड लाइफ इज नॉट समथिंग दैट कैन बी क्वांटिफाइड इन मनी टर्म्स। हाँ, दोनों साइड पैसे होने चाहिए। 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड यहां ऐसे करूं तो 48 करोड़ इन्वेस्टमेंट, तो 48 करोड़ ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट है, तो आई विल टेक सेकंड ऑप्शन। या आपको रोड बनाना है, रोड इस जगह पे बनाऊंगा एक पॉइंट से, तो 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, एक साल में रोड कंप्लीट होगा, ओके, इतना इतना लेबर लगेगा। बी साइड से लेके जाऊंगा रोड, तो इतना इतना कॉस्ट, 2000 करोड़, 2 साल लगेंगे और इतने लोग डिस्प्लेस होंगे। तो यू आर जस्ट कंपेयरिंग दोनों साइड पे टाइम, कॉस्ट, लेबर एंड डिस्प्लेसमेंट पैरामीटर। यूटिलिटी थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन सच अ केसेस, but you have 50 crore on one hand and human life on other hand. That quantification you can do. For example, surrogacy. सरोगेसी में 25,000 करोड़ का मार्केट है सरोगेसी का, तो 25,000 करोड़ सरोगेसी मार्केट था, इसलिए सरोगेसी अलाउ करो। और पुअर विमेन जो है उनका वुम्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी बॉडी का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ओके, यू कांट जस्टिफाइड। तो इसी को बोला जाता है क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइफ। फिर सेम वे प्रोस्टिट्यूशन, और प्रोस्टिट्यूशन में बहुत सारा इनकम आता है फिर उन औरतों को, तो शुड वी अलाउ द ट्रेड ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वैल्यूज? हम वो ट्रेड नहीं कर सकते। सो यूटिलिटी थ्योरीज कैन बी अप्लाइड अगर दोनों साइड ऑब्जेक्ट हो या दोनों साइड ह्यूमन लाइफ हो। मतलब क्या, ट्रेन जा रही है, ट्रैम का ब्रेक एक पटरी से जाती है ए रोड से, ए रोड पे एक आदमी खड़ा है, अगर ट्रैम को दूसरी जगह लेके जाओ बी रोड, वहां पे 5 लोग हैं, कोई तो मरेगा दोनों में से, तो किसको मारोगे, एक को या 5 को? दोनों साइड लाइफ है, तो आई विल किल 1 सेव 5। दैट डिसीजन कैन बी डन इन यूटिलिटी कैलकुलेशन। बट एक साइड पैसा और एक साइड लाइफ, यू कांट डू दैट, यू कांट क्वांटिफाई ह्यूमन वैल्यूज। तो ये बहुत कोर टर्म है, तो वो यहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप, दैट यूटिलिटी थ्योरी में ये डिसीजन क्यों नहीं करूंगा, व्हाई इट इज रॉन्ग डिसीजन, आई शुड डेवलप द ड्रग, ओके, तो वो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। बट दिस डिसीजन इज अनइथिकल एज इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइफ, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। यूटिलिटी थ्योरीज कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, okay, not to be applied to cases when human life is involved. The utility theory you can apply in cases of objects, not where human life is involved, okay, and that's why I will not develop the drug. इसका सपोर्ट भी लिखा, एक आर्ग्यूमेंट, 1-2 पॉइंट, एंड डिस्प्रूव करने के लिए भी आपने 1-2 पॉइंट लिखे, ओके। तो यहां पे थोड़ा मैंने वर्ड लिमिट फॉलो नहीं किया, बट व्हेन यू विल राइट वेरी इन अ क्रिस्प मैनर, okay, precise manner, या थोड़ा explanation देने के लिए I have added them in a little bit descriptive way. Then action 2, I will incur the expenditure in the larger interest of society. अब मैं action I will incur the expenditure in larger interest of society, ये क्यों करना है मुझे, तो इसका justify करो पहले and disprove करना है तो आगे जाके। Why I will develop the drug? Because I shouldn't count human life in money terms, सबसे strong argument, okay. So we shouldn't use utilitarian principles of ethics in such a cases as judging human life in money terms is itself unethical thing to do. Human life को money terms में measure करना unethical चीज है। And also gone are the days of values like business of business is business, okay. और अब वो दिन चले गए where business of business is business. Business का काम सिर्फ business profit बनाना नहीं है, business का काम ये भी है that they have the larger share in the development of the society, in a welfare of the society. And today any business has intimate stake to ensure welfare of society at large. बिजनेस को सोसाइटी का डेवलपमेंट करना ये भी एक मोरल ऑब्लिगेशन है, सिर्फ अपना बिजनेस करना ये ऑब्लिगेशन नहीं है। और उसी पॉइंट को हम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नाम देते हैं जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? CSR प्रिंसिपल। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, इसका जो डेफिनेशन है उसमें आपको ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच एक टर्म आती है, और ऐसी टर्म्स आपको आंसर में यूज करनी है। तो ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच मतलब क्या? व्हाइल रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कॉर्पोरेट एंटिटी, यू नीड टू थिंक अबाउट 3 बॉटम लाइन्स। एक है आपका इकोनॉमिक बॉटम लाइन, इकोनॉमिक प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट, वो तो करना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू बी
नॉट ओनली इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल, कोई फ्रॉड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं करना, लोगों को शेयर होल्डर्स को डिफ्रॉड नहीं करना, एम्प्लॉयज को डिफ्रॉड नहीं करना. सो यू नीड टू गवर्न इकोनॉमिकली इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर. At the same time, you need to govern in a socially responsible manner. Okay, and also you need to govern in a environmentally responsible manner. And ये तीनों चीजें आप जब करते हो, environmental responsibility, social responsibility, along with economic responsibility, तो उसी concept को बोला जाता है corporate social responsibility. So corporate who is ethically and socially responsible, okay, that is CSR, and that means you have not only economic responsibility, you also have social responsibility that you need to satisfy. And so corporate social responsibility principles mandate or tell me that I need to be socially responsible. If I have knowledge, I should develop the drug. I shouldn't only think about the profit perspective. I should also take into account in my decision social perspective. Along with that, और एक word आप term use कर सकते हो, principle of corporate citizenship. फिर और एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ही, क्लास में मैं पढ़ाता हूं इसको, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सिटीजनशिप? कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मींस कॉर्पोरेट हु इज आल्सो अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. तो कॉर्पोरेट हु इज सिटीजन मींस व्हाट, कि एक सिटीजन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या क्या काम करते हैं, वैसे कॉर्पोरेट एंटिटी भी खुद को सिटीजन समझ के वो सारे काम करे. सो फॉर एग्जाम्पल, एज अ सिटीजन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे. एज अ सिटीजन वी सेलिब्रेट our this social work we do. As a citizen we go and work for some NGOs. As a citizen we keep the public places clean. तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो जो काम करता है, कॉर्पोरेट एंटिटी भी खुद को सिटीजन समझ के वो सारे काम करे. तो कॉर्पोरेट एंटिटी भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करे, कॉर्पोरेट एंटिटी भी एनवायरमेंट क्लीन रखे, कॉर्पोरेट एंटिटी भी सोशल वर्क करे, कॉर्पोरेट एंटिटी भी एनजीओज जो सोशल वर्क करे उनको सपोर्ट करे. तो ये सारी चीजें करना, ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप. तो ये सीएसआर का प्रिंसिपल एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप प्रिंसिपल टेल्स मी दैट आई शुड टेक अ डिसीजन, और दैट वाइडली गवर्न बिजनेस वर्ल्ड टेल्स मी, सजेस्ट दैट प्राइवेट कॉर्पोरेशंस हैव इक्वल स्टेक एज गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. तो मुझे ये दो चीजें बता रही है कि आई शुड इन्वेस्ट माई मनी टू डेवलप द ड्रग फॉर द ट्राइबल पीपल, एंड ऑल्सो क्वांटिफाइंग लाइफ इज अ रॉन्ग थिंग टू डू. तो इसलिए आई विल डेवलप द ड्रग. बट ऑल्सो गांधीयन इथिक्स जब हम क्लास में पढ़ेंगे, बहुत क्लासिक थिंकर है गांधी, बहुत सारे उनकी इथिक्स का आइडिया ज़्यादा काम आती है, बिकॉज बाकी के थिंकर्स तो थोड़े ओल्ड है, लाइक बहुत सालों पहले के हैं. गांधी वॉज देयर व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट वेयर इवॉल्विंग. तो बहुत सारी गांधी के आइडिया इथिक्स में भी काम आती है. When we will discuss Gandhian ethics in class, I will discuss with you those concepts like idea of village republic, idea of Swaraj, idea of Dharmaraj, morality, legality, etc. Then we will discuss concept Gandhian concept or ideas on economy, or Gandhian ethics on economy, Gandhian ethics about politics, etc. और वहाँ पे हम और एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे गांधी का आइडिया, 7 social sins that Gandhi talked about, 7 dangers to virtue या 7 roots of human 7 roots of violence. तीनों एक ही कंसेप्ट है, डेंजर्स टू ह्यूमन वर्च्यू, रूट्स ऑफ वायलेंस या 7 सोशल सिंस. और उसमें गांधी जी ने बहुत सारे सोशल सिंस की बात की थी, और उसमें एक सोशल सिन की बात की थी उन्होंने, दैट इज बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज सिन, एंड एवरी बिजनेसमैन शुड वर्क इन अ मोरली रिस्पॉन्सिबल मैनर. और एक गांधी का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ, ट्रस्टीशिप ऑफ नॉलेज. बहुत क्लासिक कंसेप्ट है, वो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो डू एनरोल फॉर माई इथिक्स क्लासेस, देयर आई विल गिव यू द कॉम्प्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो आपको इतने सारे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा गाइज दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इथिक्स पेपर एट ऑल. एवरीथिंग विल गेट कवर्ड इन अ वेरी थॉरो मैनर. तो ये जो ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ, ट्रस्टीशिप ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट है, गांधी का कहना जो बेसिक था उसमें, दैट इफ यू हैव एनी वेल्थ, इफ यू हैव एनी नॉलेज that can be used for welfare of the society, then you should use that. You have that moral obligation to act, that you are trustee of that wealth, you are trustee of that knowledge, and you should use your knowledge for the welfare of the society. तो जैसे ऑक्सफोर्ड के पास कोविशील्ड का फॉर्मूला था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत प्रॉफिट कमा सकती थी वो कोविशील्ड फॉर्मूला कमर्शियलाइज करके, बट उन्होंने नॉन फॉर प्रॉफिट बेसिस पे जो अदर पूनावाला को दिया, एंड ही प्रोड्यूस देम फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट बेसिस.
So what other Poonawalla did and what Oxford did was this trusteeship of knowledge. They use their knowledge for welfare of society. So I will try to do something. तो आप वो आइडियाज भी गांधी के आइडियाज अप्लाई करो यहाँ पे. एप्लीकेशन ऑफ थिंकर जो मैं बोल रहा हूँ यही वो पार्ट है. सो बिजनेस विदाउट मोनेटरी सिन and person should always use his knowledge and wealth as if he is the trustee of the society. So I will try to make sure that I will use the knowledge my company has, okay, to the lives of those tribal people. So I will use my knowledge to save those lives. तो ये 3-4 पॉइंट आपने जस्टिफाई किए. अब इसके आगे जाके केस स्टडी के थोड़ा आगे जाके आपको ये भी सॉल्यूशन देना है, थर्ड ऑप्शन या इसी का एक्सटेंडेड पार्ट, कि चलो मैं तो ड्रग अब डेवलप करूंगा, I will develop the drug, but while developing the drug, I will ensure that it will not cost any financial burden for the company, financial crisis, और कॉस्ट मिनिमाइज करके या कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ के मैं ये सारी चीजें करूंगा. I will act as a trustee of knowledge, I will govern in social responsible way, I will take decision in a welfare of society, but while doing so I will try to minimize the cost. और यहां पे आप अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन गो बियॉन्ड द केस स्टडी. और जो सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ थिंकर तो किया आपने, नाउ डू द गो इन द सॉल्यूशन मोड, गिव एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस. सो एट द सेम टाइम, सो थर्ड एक्शन, आई विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, द एक्सपेंडिचर incurred, and I will try to minimize that. So to reduce the burden of financial crisis on the organization and to respect the organizational constraint, I will try to ensure golden mean or middle path advocated by Bhagavad Gita ethics, Buddhism और Aristotle. तो फिर से एक आध जहाँ पे स्कोप हो कॉइन कर दो टर्म, एक वैल्यू लोडेड टर्म ऐड कर दो, थिंकर ऐड कर दो. सो स्टेप्स दैट कैन हेल्प फाइंड सच अ गोल्डन मीन कुड बी. सो अज्यूमिंग कि मेरी कंपनी CSR करती है एक्सपेंडिचर, सो आई विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू कंसिडर ये ड्रग डेवलपमेंट पे मेरा जो खर्चा होगा एज अ CSR एक्सपेंडिचर अंडर द कंपनीज एक्ट. तो मुझे कोई दूसरा ड्रग पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. देन कन्विंसिंग गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज द ड्रग एंड शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. या फिर आई विल आस्क गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, टाई अप विद द गवर्नमेंट, विल टेक डिस्कशन विद द हेल्थ मिनिस्टर्स एटसेट्रा कि ये तो ड्रग मैं उसी कॉस्ट में प्रोड्यूस करके बेचूंगा, लेकिन आप उसको सब्सिडाइज करो या आप मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शेयर करो. मैं 5 करोड़ डालता हूँ, 45 करोड़ आप दे दो, ओके, फॉर वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स. ओके, एंड यू डोंट नो फ्यूचर में ये डिजीज और ज्यादा प्रिवेलेंस ना बढ़े, तो गवर्नमेंट शुड टेक दिस वेल थॉट डिसीजन, कैलकुलेटेड डिसीजन, ओके, फ्यूचरिस्टिक डिसीजन. तो दैट आई विल ट्राई टू कन्विंस. देन फाइंडिंग सुटेबल कंपनी हु इज मास्टरिंग जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन. तो ये जो स्टेक होल्डर की डायग्राम में 4-5 आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे थे, वही सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ सॉल्यूशन बना के लिखने. सो आई विल डेवलप टाई अप विद एनी जेनरिक ड्रग कंपनी. यहाँ पे नाम भी डाल दो वो कंपनीज के जो इंडिया की फेमस है, रैम्बैक्सी, पिरामल एटसेट्रा, सिप्ला एटसेट्रा, सीरम इंस्टीट्यूट अदर पूनावाले की. तो लगेगा कि आप यू आर वेल रेड पर्सन, यू नो विच आर द जेनरिक ड्रग कंपनीज इन इंडिया. सो आई विल टाई अप विद देम टू प्रोड्यूस ड्रग एट लोअर कॉस्ट, or I will share the formula of production with some government PSU, okay, so that they will produce the drug on non-for-profit basis, etc., or sharing the cost of production. तो इस हिसाब से we will try to do some solution. तो आपने एक 4-5 solution दिए इस इश्यू से डील करने के लिए, और इसके अलावा और क्या क्या करोगे, ओके. तो एक पॉइंट ये भी था, और ये डिसीजन को और जस्टिफाई करने के लिए जो मैंने इनिशियली आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ गुडविल to my company, it will create brand name of my company, extreme goodwill with the government, with the people, or future में that will help me to deal with the issue. So I will also try to justify my action to my shareholders, as it will fetch tremendous goodwill for company. It will help create good relation with the government, will create mouth publicity, and will also save, okay, expenditure for the company in advertisement. तो वहाँ पे भी जो मुझे फायदा होगा, इसलिए आई शुड डेवलप द ड्रग. उसका एंड में भी और एक जस्टिफिकेशन दिया. फिर और एक एक्शन क्या हो सकती है, दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, मार्केट सर्वे. आई विल हायर मार्केट सर्वे एजेंसीज, आई विल टाई अप विद इंटरनेशनल एजेंसीज टू अंडरस्टैंड द रियल प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज, रियल एक्सपोजर, और उसके बाद डिसीजन लेना फाइनेंशियल विल बी ईजी एंड इट माइट प्रूव इवन प्रॉफिटेबल. सो आई विल अपॉइंट टीम एंड विल टाई अप विद द
national organization survey companies to carry out detailed survey to analyze and ensure prevalence of mentioned disease. Okay, and this will aid me in doing cost benefit analysis and take rational investment decision. So this will help me in doing right cost benefit analysis, help me take more proper rational investment decision. अगर मैं ऐसा मार्केट सर्वे करता हूं, that will be extremely beneficial. और उसके बाद और एक आपका स्टेक होल्डर था R&D टीम, जिन्होंने ये इंग्रेडिएंट ढूंढ निकाला. सो आई विल ऑल्सो अपॉइंट नाउ सेपरेट डेडिकेटेड टीम मेरे कंपनी के कुछ साइंटिस्ट की, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑप्शंस और गिव देम द टास्क दैट हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर, मिनिमाइज दिस एक्सपेंडिचर, या कोई ऐसी प्रोसेस निकालो जो वेटरनरी ड्रग्स बनाने के साथ एज अ बाई प्रोडक्ट ये भी ड्रग बन जाए, एंड ए समहाउ वेदर वी कुड रिड्यूस द कॉस्ट पॉसिबल. तो आप वो भी पॉइंट में लिखना. सो आई विल अपॉइंट टीम ऑफ साइंटिस्ट टू डू R&D on the drug to know possibility by which cost of production can be significantly reduced. Okay, तो cost of production reduce करने के लिए और एक ऑप्शन या सोल्यूशन आपने लिखा. So guys, इस केस स्टडी में we apply thinkers also. फर्स्ट पॉइंट हमने किया, सोल्यूशन भी जनरेट किए, yes we did that. देन हमने स्टेक होल्डर की डायग्राम भी बनाई, हमने मोरल डायलेमा भी लिखा, और ये सारा आंसर लिखते वक्त हमने बहुत मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करके आंसर जो लिखा वो भी वैल्यू लोडेड टर्मिनोलॉजीज में, एंड वी वेंट बियॉन्ड केस स्टडी टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस. तो बहुत प्रॉपरली हमने सारा आंसर जनरेट किया, फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज किया और उसको प्रेजेंट किया. तो इन जनरल अगर हम फिर से रिव्यू करते हैं आंसर को, तो पहले ये की एक्टर पर्सपेक्टिव की डायग्राम जहां पे आपको 2-1 मार्क देगा, देन मोरल डायलेमा के लिए 1 आध मार्क. फिर आगे जाते हैं तो यहां पे ओके तो की एक्टर पर्सपेक्टिव, फिर ये मोरल डायलेमा, फिर यहाँ पे यूटिलिटी थ्योरी आपने मेंशन की, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेंशन किया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एटसेट्रा एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यूज. 3 पॉइंट इस स्लाइड पे हमने एक्सप्लेन किए. देन क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्यों गलत है, आई शुड बी गवर्निंग विथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, बिजनेस विदाउट मोरालिटी सिन एंड ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज, और एक 4 टर्म्स. तो 7 टर्म्स हमने यहीं पे कॉइन की. इसके बाद ओके गोल्डन मीन का भी एक टर्म कॉइन किया 8. देन हमने ये 4 सॉल्यूशन दिए, हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट 12 पॉइंट्स. देन मार्केट सर्वे एंड R&D टीम 13-14. ओके तो ओवरऑल आपने 14 पॉइंट्स में आंसर लिखा कोर टर्म्स. तो मैंने आपको बताया था पूरे पेपर में 301 वैल्यू लोडेड टर्मिनोलॉजीज की लिस्ट बन जाती है. In my classes, when we will discuss the entire classes on my दार्शनिक IAS app, तो 101 घंटे का पूरा क्लास, 120 घंटे का जो भी क्लास चले, खत्म होने के बाद लास्ट लेक्चर पे मैं ये सारे टर्म्स की लिस्ट आपको दूंगा, आपसे लिखवाऊंगा, और वो जो सारे टर्म्स है 250-300, उसमें से आपको हर केस में सिर्फ 8-10 टर्म्स अप्लाई करने. जैसे अभी हमने 14 टर्म्स पे या 14 पॉइंटर्स पे आंसर लिखा, and that's what you need to do, and trust me, you will get very good marks. So I hope this is a model case study with which you understood the basic concept, how to approach case study, how to frame the case study answer, how to organize and present them. Okay, now this is just one case study, but I will discuss more than 20-25 case study in my app classes. So do enroll for those classes and take advantage of my ethics classes as well as essay classes, and enroll there, and I will guarantee you guys, you don't have to worry about essay paper and ethics paper at all. Okay, you will be extremely in good position after all those classes. And also stay tuned to me on Darshanik IAS by Kadam sir, my YouTube channel, and join me on UPSC Ethics 4 Telegram channel, where I will upload all these notes. You can download those notes from there, and also download my app Darshanik IAS by Kadam sir from Play Store. So that's all for now guys. Thanks for listening and stay tuned.